everyone, this is Vinita Bishnoi. Welcome to my channel Milestones in Biology. So let's start with today's video. In my previous video, I have given an idea about the first basis on which we can classify the protein. Now in this video, we are going to talk about some other different types or some other basis on which we can easily classify these protein. So first basis which I am talking about is on the basis of shape, and on basis of shape there are two types of protein. One is fibrous protein. Name suggests that these proteins will be thread-like. वो thread-like proteins होंगे. दूसरी चीज, these proteins are having secondary structure. And these protein can be singly present or in group. ठीक है, तो ये जो थ्रेड लाइक है, सिंगल थ्रेड भी प्रेजेंट हो सकता है और ग्रुप ऑफ थ्रेड भी हो सकते हैं किसी भी प्रोटीन स्ट्रक्चर में. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज दे आर नॉन एंजाइमेटिक. मीन्स ये कभी भी जो एंजाइम्स होते हैं उनका फाइब्रस स्ट्रक्चर नहीं होता. And they are structural protein. But structure बनाने के लिए इनका यूज हो सकता है. जैसे कि आपको पता है प्रोटीन कैरेटिन. कैरेटिन जो होता है हमारे हेयर्स एंड नेल्स, ये सब जगह पे, हूव्स, ये सब जगह पे एनिमल में कैरेटिन प्रेजेंट होता है. सो कैरेटिन इज अ फाइब्रस प्रोटीन एंड ऑल्सो अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन. Next here is these fibrous protein can have contraction properties. ठीक है, इनके पास contraction की property भी है. और ऐसा एक fibrous protein is myosin which is present in the muscles. ठीक है, तो जो muscles में myosin protein होता है, these are fibrous protein. Myosin and actin, these are fibrous protein, thread-like protein which helps in contraction in the muscle. Now the next type is globular protein. Globular protein will be round in the appearance. इनका जो shape होता है, they will be having round or you can say spherical shape. Second cheese, one more thing I want to add here. These fibrous protein are tough. They are having rigid structure. You can guess from this keratin protein. Globular protein जो होता है वो round या spherical होता है अपने outline में. They are having tertiary और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. ठीक है, तो ये जो है इनमें क्वाटरनरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर हो सकता है. ये जो है एंजाइमेटिक और नॉन एंजाइमेटिक दोनों हो सकते हैं. तो जो एंजाइमेटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन से बनते हैं. व्हाई दे आर लाइक दैट I will tell you in detail when we will discuss the types of protein on the basis of their structure. जो उनका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है उस समय मैं आपको ये चीज समझाऊंगी about the structure of enzyme. So ये राउंड स्फेरिकल हो गया, टर्शियरी क्वाटरनरी हो सकता है, एंजाइमेटिक नॉन एंजाइमेटिक हो सकता है. एक और चीज, never have property of contraction. इसमें contraction की property नहीं हो सकती. Here in globular, small ones can be soluble, but larger one never be soluble. ठीक है, इसमें अगर हम एग्जाम्पल याद करें तो इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा है जैसे कि हीमोग्लोबिन
मायोग्लोबिन, नाम में ही ग्लोबिन है, मतलब these pigments they are having proteins which are having globular shape. तो हीमोग्लोबिन में और मायोग्लोबिन दोनों में जो प्रोटीन होगा उनका ग्लोबुलर शेप होगा. सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस अबाउट फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन. अभी ग्लोबुलर प्रोटीन में आप कैसे देखेंगे, जैसे कि सपोज मैं हीमोग्लोबिन की बात कर रही हूँ, तो ये जो 4 में पॉलीपेप्टाइड, इसमें hemoglobin में you will find 4 polypeptide chains are there. So I am drawing like this. These are the 4 polypeptide chains. These are the 4 globin chains, and here you will find they are having heme group which helps in reacting with oxygen. Some more example I want to add here, like histone protein, then albumins. So यहाँ पे जो भी प्रोटीन्स होंगे दे आर हैविंग ग्लोबुलर शेप. फाइब्रस एंड ग्लोबुलर ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा, इसका क्वाटरनरी टर्शियरी स्ट्रक्चर हो सकता है. ये नॉन एंजाइमेटिक होते हैं ये एंजाइमेटिक या नॉन एंजाइमेटिक दोनों में से कुछ भी हो सकता है. स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं एंड दे आर हैविंग कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज व्हिच दीज डू नॉट पोजेस, and the examples are given. Now just quickly take a screenshot, then I will move on to the next topic is on the basis of the composition, कि ये जो प्रोटीन होते हैं वो किस किस चीज से बने हैं. आपको पता है प्रोटीन अमीनो एसिड से बने होते हैं, बट कभी कभी अमीनो एसिड्स के साथ कुछ और नॉन अमीनो ग्रुप्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं. सो ऑन दैट बेसिस वी आर गोइंग टू क्लासिफाई दिस. द फर्स्ट इज सिंपल प्रोटीन. Simple protein are very simple, means the proteins which are made up of only amino acids, made up of only amino acids, no non-amino group is present. ठीक है, इसमें सिर्फ आपको अमीनो एसिड्स मिलेंगे, नॉन अमीनो ग्रुप नहीं प्रेजेंट होंगे, इसलिए हम इसको सिंपल प्रोटीन बोलेंगे. इसके एग्जांपल्स अगर आप देखें तो एग्जाम्पल्स में कैरोटीन आएगा, हिस्टोन्स आएंगे, एल्ब्यूमिन्स आते हैं एंड ग्लोबुलिन्स. सो दीज आर द सिंपल प्रोटीन्स. नेक्स्ट इज द कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स. कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स का मतलब हुआ when you will see that protein is made up of 2 components, amino acid plus non amino group. ठीक है, आपको अमीनो एसिड्स भी दिखेंगे और उसके अलावा भी नॉन अमीनो ग्रुप दिखेंगे. ऐसे प्रोटीन को हम कॉन्जुगेटेड बोलेंगे. यहाँ पे ये जो नॉन अमीनो ग्रुप लिखा है, यहाँ पे आप इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप भी बोल सकते हैं. तो अगर हम नेमिंग की बात करें ऐसे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स की, सो हाउ वी आर गोइंग टू नेम इट. इफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट विद न्यूक्लिक एसिड, तो आप उसे बोलेंगे न्यूक्लियो प्रोटीन. जैसे कि आपको पता है ये जो न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं दैट इज देयर इन आवर न्यूक्लियस. सेकंड इज क्योंकि न्यूक्लियस में जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो प्रोटीन्स के आसपास रैप्ड होते हैं, तो क्रोमोसोम के अंदर आपको न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स दोनों देखने को मिलेंगे. देन प्रोटीन प्लस फॉस्फोरस, फॉस्फोप्रोटीन बोलते हैं. फॉस्फोप्रोटीन अगर आपको देखना है, सो यू विल फाइंड दिस इन केस ऑफ केसिन प्रोटीन ऑफ मिल्क. मिल्क में जो केसिन प्रोटीन होता है उसमें फॉस्फोप्रोटीन्स होते हैं. नेक्स्ट वन इज
इन केस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या होगा, द प्रोटीन इज ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक है, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होगा आयरन के साथ, हीम के साथ, ठीक है, जिसको आप हीम कहते हैं। सो हीम के साथ प्रेजेंट होगा, इसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है प्रोटीन प्लस म्यूकोपॉलीसैकेराइड, जिससे आप बोल सकते हैं म्यूसिन, which is present in saliva which gives extra sticky effect to it. So ये हमने conjugated proteins की बात की। जब भी प्रोटीन किसी प्रोस्थेटिक या नॉन अमीनो ग्रुप के साथ एसोसिएटेड होता है, उस प्रोटीन को आप कॉन्जुगेटेड बोल सकते हैं। इसमें आपका जो नेमिंग है, जो आप नेम्स प्रोवाइड करते हैं ऐसे प्रोटीन्स को, उनमें आपको प्रोटीन के साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप को भी ऐड करना होता है। तो जैसे न्यूक्लिक एसिड में आपको न्यूक्लियोप्रोटीन बोलना है, फॉस्फोप्रोटीन बोलना है, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन मीन्स ही होता है ग्लोबुलर प्रोटीन एंड हीम मीन्स the iron content. So likewise you have to name it. Now the third category is derived protein. Derived protein जो होता है, इसका मतलब होता है जब भी कोई भी प्रोटीन जब फर्दर डिवाइड होता हो और स्मॉलर प्रोटीन में डिवाइड हो जाता है, उसको हम प्रोटीन्स कहते हैं, डेराइव्ड प्रोटीन्स कहते हैं। इसका एग्जांपल मैं देती हूँ। जब भी डाइजेशन हो रहा होता है, ड्यूरिंग दैट टाइम यू आर हैविंग अ प्रोटीन इन योर डाइट एंड व्हेन इट गोज इनटू योर स्टमक इट स्टार्ट्स डिवाइडिंग फर्दर एंड फर्दर, ठीक है। अमीनो एसिड और प्रोटीन्स के बीच में भी प्रोटीएजेस, पेप्टोन्स, ऐसे छोटे छोटे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। दैट इज डेराइव्ड प्रोटीन, जो कि नॉर्मल प्रोटीन के स्ट्रक्चर चेंज से बनते हैं। So you can write it as protein after breakdown forms it. It means derived protein. तो हम इसको intermediate protein बोले। intermediate protein क्यों बोलना है आपको इससे? Because they are not amino acids, they are not the larger protein molecules. ये in between stages आते हैं, इसलिए मैं इसको intermediate proteins भी बोल रही हूँ। derived protein जो है breakdown, अब ये जो breakdown होता है ये अलग अलग प्रोसेस से हो सकता है। denaturation, coagulation, ठीक है। सो ऐसे कुछ प्रोसेस से ब्रेकडाउन होता है, या डाइजेशन, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल अगर कोगुलेशन की बात करूं तो इसमें एग्जाम्पल्स हम याद रखेंगे। फाइब्रिन, जब भी ब्लड क्लॉट होता है उस समय जो प्रोटीन्स होते हैं, बड़े प्रोटीन्स, वो ब्रेकडाउन होकर फाइब्रिन स्ट्रक्चर गेन करते हैं फॉर द क्लॉटिंग पर्पस। फिर पेप्टोन्स, प्रोटीएजेस, ये सारे जो आएंगे ये डेराइव्ड प्रोटीन के अंडर आएंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज डीनेचुरेशन? ये टर्म आप अभी भी पढ़ रहे हैं, आपको 12th में भी ये वर्ड आएगा ही। डी मतलब व्हेन समथिंग चेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पे डीनेचुरेशन मतलब द नेचर ऑफ द प्रोटीन इज चेंज्ड। हाउ इट इज चेंज्ड? whenever you are providing higher temperature, higher pH, unfavorable condition to these protein molecules, they will change their three-dimensional structure by breaking their bonds, and because of that they will lose their functional activity, ठीक है। तो डीनेचुरेशन का मतलब होता है जब भी आप प्रोटीन्स को कोई एडवर्स कंडीशन देते हैं, आप हायर टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, आप हाई पीएच प्रोवाइड करते हैं, तो उस क्योंकि हर एक जो एंजाइम्स होते हैं या जो भी प्रोटीन्स होते हैं वो स्पेसिफिक पीएच पे ही काम करते हैं। तो जैसे ही पीएच चेंज हुआ तो ये जो प्रोटीन है इनका जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, बिकॉज दैट स्टेबल थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज बिकॉज ऑफ द बॉन्ड्स बिटवीन देम। तो ये प्रोटीन जो है इनके बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे,
जिसके वजह से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो उसकी वजह से उनकी जो फंक्शनल एक्टिविटी है वो भी चेंज होती है। तो डीनेचुरेशन के बाद रीनेचुरेशन भी हो सकता है। जैसे ही आप उनको वापस सुटेबल टेम्परेचर एंड पीएच प्रोवाइड करेंगे वो वापस अपना जो शेप है वो रीगेन करते हैं। तो डीनेचुरेशन की वजह से भी प्रोटीन्स जो है दैट कैन बी डिराइव्ड। सो इन टुडेज वीडियो वी हैड अ टॉक अबाउट द बेसिस on which we can classify the first basis, that is the shape, fibrous and globular, and second is on the basis of composition. So composition के basis पे मैंने आपको ये 3 चीज़ें बताई हैं। आप लोगों को ये जो भी बीच में थोड़ी मोड़ी चीज़ें, जैसे मैंने आज डीनेचुरेशन के बारे में बताया, आपको केसिन प्रोटीन के बारे में बताया, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीड। सो जस्ट रिमेंबर सच थिंग्स। सो कुछ भी आप लोगों को डाउट है इस टॉपिक में, अगेन मेरा सेम डायलॉग है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे शेयर कर सकते हैं। एंड अगर बहुत सारे डाउट है आप मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पे भी मेल करके बता सकते हैं। एंड ईमेल एड्रेस मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, बी सेफ एंड गुड बाय।